اسکول پڑھنے والے لوگ ایک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ کٹر تھا. ہسٹری میں کٹر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاں، ظالم بادشاہ اس کو بولا جاتا ہے. نوجوانوں، ہماری ہسٹری بدل کے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. مجھے تعجب ہوا جب 15 اگست کے دن کوئی لیکچر دے رہا تھا تو اس نے لیکچر کے بیچ میں کہا اورنگزیب کٹر. ہمارے بچے یہ بولی بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے نہ اسکول ہیں اور نہ ہمارے کالجز ہیں. ہم تعلیم میں بھی ان کے محتاج ہیں کہ جو ہمیں ایک منٹ ہندوستان میں دیکھنا نہیں چاہتے. ہماری مرضی ہے. میری بات کان کھول کے سنو. اب سنو کون اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے جب کرسی پہ بیٹھا نا تو پورے ہند میں نظام مصطفیٰ کے نقشے نظر آ رہے تھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو کھل کے کہتے ڈر نہیں لگتا. سیدھی سی بات ہے، جس چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ وہیں پولیس والا 20 روپے لے کے گاڑی چھوڑ رہا. کہہ رہے ہیں بھرشٹاچار مکت ہے بھارت، اور جب سے یہ مکتی کے نعرے لگے اس میں ہی بھرشٹاچار بڑھا ہوا. اتنا ہی مفت میں ہے جن پولیس والوں کو ٹیمپو نصیب نہیں ہوتے تھے آج اسکارپیو میں چل رہے ہیں. سیلری 11,000 کی اور اوپر سے رشوت 10-20 لاکھ مار رہے ہیں. ایک جلسہ کرانے لگو جبکہ دھارمک استعلوں پہ یا کوئی بھی مذہبی اس پروگراموں میں پرمیشن کی ضرورت نہیں، لیکن تمہیں جلسہ کرانا تو 15-20 ہزار دینے پڑیں گے ان چوروں کو. اور کہتے بھرشٹاچار مکت ہے. یہ اسے مکت نہیں کہتے، مکت کیا تھا اورنگزیب عالمگیر. ہائے ہائے، واہ 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 واہ. رہتا دہلی میں تھا، دہشت اکھنڈ بھارت میں رہتی تھی. یہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہوں، بٹے ہوئے ملک کی نہیں، کٹے ہوئے ملک کی نہیں، اکھنڈ بھارت کی بات ہے. وہ بھائی بنارس کی یہی زمین، یہاں پہ کوتوال مقرر کیا اورنگزیب عالمگیر نے. اپنا نام تھا ابراہیم. کیا نام تھا؟ بولے سارے ابراہیم. یاد کر لینا میرے بچے، تاکہ آج کے بعد کوئی اورنگزیب کو کٹر تمہارے سامنے نہ کہہ سکے. اس کے منہ پہ تاریخ کا یہ تماچا لگنا چاہیے. ابراہیم کی عادت تھی روز صبح ٹہلنے کی. جی بھائی توجہ ہے یار، اگر تھوڑا ماحول سازگار ہو تو بولوں میں، ورنہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سر دیکھ کے تسلی حاصل کر لو. بھائی میرا منہ نہیں دکھ پا رہے تھے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. ابراہیم کو مقرر کیا کوتوال. ابراہیم کی عادت تھی روز صبح ٹہلنے جاتا. ایک دن ٹہل کے آ رہا تھا گنگا کنارے، تو گنگا اسنان کے بعد ایک پنڈت کی بیٹی گنگا اسنان کر کے واپس آ رہی تھی. پنڈت بوڑھا کھسٹ آدمی ہے نا. کچھ لوگ جو ہے نا عجیب طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن غیرت نہیں آتی ہے. تو اس کی نظر اس پہ پڑ گئی. اس نے بلایا اپنے کارندوں کو، پوچھا یہ لڑکی کون تھی، پتا کرو. پتا کیا گیا تو وہ ایک پنڈت کی بیٹی. اس نے کہا حضور وہ تو پنڈت کی بیٹی ہے. کہا تو کیا ہوا، یہاں حاکم تو ہم ہیں نا، یہاں ہماری حکومت ہے، یہاں ہمارا سکہ چلتا ہے. خبر بھیج دو، ہمیں اس کی بیٹی چاہیے. خبر گئی. پنڈت بیٹی بیٹی ہوتی ہے. باپ تھا اداس ہو گیا کہ میری بیٹی پہ ایک مسلم کی نیت خراب ہو گئی. گھر آ کے سست بیٹھ گیا، ہر دن کے برابر کھانا نہیں کھایا. بچی پوچھ بیٹھی ابا ہوا کیا ہے. کہا بیٹی کوتوال کا پیغام آیا ہے، اس کی نظر تم پہ پڑ گئی ہے، وہ تمہیں اپنے محل میں چاہتا ہے. تو بچی نے کہا ٹھیک ہے ابا جاؤ. پریشان کیوں ہو؟ کہا میرا جی چاہتا بیٹی کیا کیا جائے، اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ سب کو قتل کر دے گا، اور مان لیتے ہیں تو عزت چلی جائے گی. اس نے کہا ابا ایک کام کریں، جلدی کریں، کوتوال سے جا کے کہیں کہ ایک بیٹی ہے، ایسے ہی تو نہیں بھیجی جا سکتی، تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیا جائے، تھوڑا سا وقت لے لیں، پھر کوئی راستہ نکل آئے گا. بچی کے کہنے پہ باپ گیا، اجازت لے لی، وقت مل گیا تھوڑا سا. باپ پھر آ گیا، بیٹی وقت گزر رہا ہے، میں مہینے بھر کا ٹائم لے چکا ہوں، اب کیا ہوگا. بچی کہتی رکو نا، وقت یہ بھی پورا ہو چلا. اس نے پھر کہا ابا جا کے کہو
बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने? कहा 8 दिन और बढ़वा लो, 8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा, वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा? बच्ची कहती है अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे? बाप ने कहा बेटी क्या करोगी? कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी, मैं जा रही हूं, परेशान ना होना, इंतजार ना करना, मैं जाऊंगी काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाजत ली। मुख्तसर तेजी से बयान कर रहा हूं मैं। बैठी घोड़े पे, सफर सीधा दिल्ली का किया और दिल्ली सफर करके पहुंची। जब पहुंची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज शुरू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहां मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दहली से जब निकलते हैं ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं जरूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गूंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रहे हैं। कोई कहता हुजूर भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नहीं है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हो, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते, जरूरतें पूरी करते करते, जब बारिश शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटियां सड़कों के लिए नहीं, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हाँ बेटी, क्या कहने। वाह। कहते आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी, फिर महल में आ गए। कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने। लोग कहते कट्टर था, आ देख औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो, कहां की बात है, दिल्ली की, दर्द कहां का है, बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है। उसने सारी बात कह डाली। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया है ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया, उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूं, बताओ मैं क्या करूं। तो औरंगजेब आलमगीर कहते जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना, बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारी चरसी निकले, मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहां गई थी? कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी? कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें, सारे डूब के मर जाते हैं। उसने कहा ना अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी है। कहा क्यों? कहा सुनो, जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है अभी। कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक मुझे सजने के लिए कह दिया। बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना, उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज दी थी। और मैं जानती हूं जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता है। कापा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सज कर जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा, लुटाता रहा, लोग लूटते रखे, लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया।
कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है, इतने सिक्के नीचे पड़े हैं कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूं, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा जिद्दी है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ ताल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है, फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी, चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। दो हाथी बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया, ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी, आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है, औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। भाई ये निजाम है इस्लाम। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह निजाम वाह है वाह, इस्लाम। वाह वाह वाह। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। वाह ये है निजाम इस्लाम। वाह वाह। ये है हातिम ताई की पोती मेरे महबूब की बारगाह में लाई गई, सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने नंगे सर देखा चादर दे दी, हाय हाय। गर्दन अदब से झुक गई। साहबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है। फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। वाह वाह, ये निजाम है इस्लाम, क्या बात है। इसे इस्लाम कहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है किसी की बेटी को तख्त में बैठा के नचाना मत नचाना, किसी की बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा लेगी। वाह, ये याद रखना आप लोग भी। जरा सी जहनी चस्कों के लिए और अय्याशी के लिए किसी की इज्जत से भी खेल जाते हैं। रह गई उन नचनियों पे पैसे लुटाने की बात, रह गई सेठ और प्रधान की बात, तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस पैसों को अय्याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो, और जब वो आईएएस बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा, तेवर फारूक आजम के नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, ये पैसा नाजायज नहीं लगाना है। वाह वाह, हम अब इस पैसे को अपनी कौम की तालीम और तामीर पे लगाएंगे। क्या पैगाम, वाह वाह वाह। दुनिया रो रही है, उसकी भाग गई, उसकी भाग गई, वो लक्ष्मण के साथ भाग गई, वो पनाह के साथ भाग गई, वो पनाह के साथ भाग गई। भाई ये रोना क्यों पड़ रहा है पता है? क्योंकि स्कूल हमारे नहीं है, कॉलेजेस हमारे नहीं है। काज पना स्कूल के आगे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए। क्यों उतरे? क्योंकि मोहताज हो तुम। पहली बात तो तुम्हारे बच्चों को तालीम के लिए सीख नहीं मिलती, और मिलती भी है तो पहले तुम्हें कुत्ता बनाया जाता है, तब तुम्हारे बेटे को बैठने की जगह दी जाती है। कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? वो नबी जिसने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का पैगाम दिया था, आज उसकी उम्मत दूसरों की मोहताज हो गई तालीम में। क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा चादरों पे लगाया, सारा पैसा मीनारों पे लगाया, सारा पैसा कव्वालों पे लगा दिया।
खुदा के वास्ते इस पैसे को उठा करके बच्ची और बच्चों की तालीम पे लगाओ। ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, स्कूल तुम्हारा हो, सिलेबस तुम्हारा हो, निजाम तुम्हारा हो, तालीम तुम्हारी हो, और जमाने को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है, जहां पैर रख देते हैं वहीं पे झंडा लहरा। आए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं कर सकते हम ऐसे, वाह वाह कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे इंशाल्लाह। तालीम पे गौर करेंगे। मारेरा शरीफ का एक पैगाम, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या बात, वाह आधी रोटी खाएंगे। नहीं बोल रहे, लग रहा है बच्चों की कमाई की आती है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। तालीम पे ज्यादा गौर करें। हमारी कौम कब मजबूत होगी? जब तालीम होगी हमारे पास, तालीम होगी। और मैं बच्चों से भी एक बात आखिर में कह दूं, मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इस मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। अच्छी तरबियत है आपकी जो इतनी रात में बैठे हुए। एक बात आखिर में कह दूं मेरे लाल तुमसे भी ना, ये जो रात के 12-12 बजे तक ना फ्री फोर क्या तो ये फ्री फायर और जो पबजा चल रहा ना, ये बंद करो मेरे लाल, बंद करो, वरना 40 साल में अंधे भी हो जाओगे, बहरे भी हो जाओगे। और निकाह के बाद ना जब काले सिर वाली घर में आएगी ना, तो फिर रोटी ना खिलाई जाएगी, तो फिर जेबें काटोगे, कटोरे लेके फिरोगे। आने वाले दौर में भीख उसे मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, प्यालों में अगले वाले दौर में भीख नहीं मिलेगी। अब तो अगर सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना, कहो टूटा हुए ना, तो बारकोड निकाल के कह रहा इस पे कर दो। बेचारी इतने एक्सपर्ट हो गए, कहने के भीख मांगनी आगे चल के। पढ़ाई पे मेहनत करो, पढ़ाई पे, मोबाइल पे नहीं। आज पढ़ लो, बड़ी बड़ी टेक्निकल पावरें कल तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। और आज अगर मोबाइल पे वक्त गुजारोगे तो कल नालियां साफ करोगे, नालियां। ये याद रखना, पितरम सुल्तान बूझ से कुछ नहीं होता। आपको अपना मैयार बनाना है, खुद में मजबूत होना है। हमें मजार पे आकर के ना, मजार पे आके खाली यही नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग दे दे, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहां बैठ के कहना साहिब मजार, जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सजदे के चक्कर में कोई दूसरे में निकाल दिया। मसला ऐसा है, मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी दिख रहा होगा, ठीक लग रही है पिस्टन। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ और तुम इतना अगर थकाओगे, 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे लाल। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह। तो चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मजार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया, मेरी बात की लगता गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना, मैं इसलिए कह गया इस बातों को। तो अब मैं आखिर में मुझसे कह रहे हैं शजरा पढ़ा जाए, तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहे आप। ये भी बात है भाई, सच्ची बात रखो, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में हम हाथ मार देंगे तो सांस ले लेंगे। तो ऐसा ना हो अल्लाह हम हाथ हिलाते रह जाए, मौलवी सांस लेना भूल जाए, फिर छुट्टी नहीं होगा ना, आज देंगे इंशाल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। आगे वाले मत बोलना, जो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना वो चुप रहे, जो जन्नतुल बकी में बैठे वो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अरे तुम जन्नतुल माला में चुप रहो, मैं उनसे कह रहा हूँ जो जाली के उस पार वाले लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ठीक है, मसले पर बल कर रहे हैं, अल्लाह घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तस्वीर ले लो हाथ में, कतई मत बोलिए। पहले बताओ अमल करोगे इंशाल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशों वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना इंशाल्लाह? हम मजार तक जाएंगे, हमारा मामला मजार और मजार वाले से है, ठीक है ना, चरसियों गुंडो आवारा लफंगों से। इनका मसला हमारा सिर्फ मजार वाले से मामला रहना चाहिए, है ना।
توجہ ہے. اب میرا ہاتھ کا اشارہ ہوگا تو کیسے بولیں گے؟ سبحان اللہ. چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا. کہنا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی, آپ کی پرورش کا کمال تھا, میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا. اچھے لوگ ہیں نا, کھڑے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں تو سمجھے ذرا. دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ ولیوں کے دم سے پہنچا ہے, غنڈوں کے دم سے نہیں. غنڈوں نے دین کی صورت بگاڑنے کی کوشش کی ہے, اصل تصویر دین کی کیا ہے یہ ولیوں نے بتائی. کیا بات, واہ. کس نے بتائی ہے؟ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں مجھے, جلدی جلدی ہاتھ اٹھا دیں. اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ جی ہو سلامت رہو. اتنے ہی بچے ہیں تمہارے شیٹ گڑھ میں؟ اسکول کالجز جتنے لوگ بھی مطلب عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. جی سلامت رہیں. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کو زندگی میں بلند منزلیں عطا فرمائے. آمین. حضور کمپل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ, اللہ صاحب مزار کے صدقے میں کسی کو آئی ایس بنا, کسی کو آئی پی ایس بنا, کسی کو ایم بی بی ایس بنا. مولا بڑی بڑی ڈگریاں عطا کر, تاکہ جب بڑی کرسی پہ بیٹھے اور حضور کے دین کے مطابق پھر یہ حق فیصلے کریں, لوگ دیکھ کے کہیں اگر غلام کے فیصلے ایسے ہیں تو مدینے والے امام کے فیصلے کیسے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. خدا سلامت رہے. میرے لال صاحب نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت شاعر ہندوستان سیف رضا کانپوری صاحب. یار دیکھو جگہ نہیں, کیوں دھکا دے رہے, وہ گر جائیں گے ان کے اوپر بھائی. آگے ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. ابھی سارے نہیں بولیں, ابھی نہیں بولیں, زور سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیرے محبوب کو پکارا ہو, آج کی رات کے صدقے اسے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. خدا سلامت رکھے. یہ بچہ انشاءاللہ ضرور جائے گا, اس کی آواز سب سے تیز تھی. اب میں اس کے بعد اگلی دعائی نہیں دے رہا ہوں, میں یہی روک دے رہا ہوں, کیونکہ بچے جو ہیں نا آج کے بچے ہیں, یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا, کل کا فیوچر ہے. ہم بچوں پہ کام کریں, یہ ذہن میں بات رکھ کے ہم بچوں پہ کام کریں. جو درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر کٹنے یا جلنے کے کام آتے ہیں, جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان سے پھل بھی اترا کرتے ہیں اور وہ سائے کا بھی کام دیتے ہیں. اس لیے چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں, ان کی تربیت اور پرورش اچھے سے کی جائے, ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے. جتنے یہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارا اسلام مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ دین ولیوں سے ہم تک پہنچا, گنڈوں سے نہیں, کرچیوں سے نہیں, آگ پینے والوں سے نہیں. ایسے ہو گئی بالوں میں قلندر بنا دیا, جوئیں نہ نہانے کا نہ دھونے کا, قطعی میل ہوا. مطلب انہیں دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہوں گے, اسلام میں ایسے پیروں میں. پیر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان گلی سے گزر کے جا رہے ہیں, چہرے پہ کپڑا پڑا تھا, ہوا کے جھونکے سے اٹھ گیا. ایک غیر مسلم کی نظر پڑ گئی, اس نے کہا جی یہ کون ہے؟ کہا یہ بریلی کے حامد رضا ہے. قدم پکڑ کے کہنے لگا اب کلمہ پڑھا دو. کہا کیوں؟ کہا اگر بریلی کا حامد اتنا حسین ہے تو مدینے کا محمد کتنا حسین ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کپڑے ہی نہیں دھوتا, مچھاندے آ گئی. سب سے حدیث ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے, بھائی ایمان کا حصہ ہے یہ. صفائی ستھرائی ہونی چاہیے کہ نہیں, ہونی چاہیے کہ نہیں. تو میلے میلوں سے بچو گے, گھنونوں سے بچو گے, جوئے ماسٹروں سے بچو گے. پیر ایسا تلاش کرو جس کی بغل میں بیٹھو تو خوشبو مدینے کی آنے لگ جائے. کیا کہنے, بازار لگے پڑے بازار پیروں کے بھی. بات لمبی ہوگی, بس میں بات کہہ کے ختم کر لوں. ان کا پورا ہو گیا میرا ایک. میں نے کہا کہ دین ہمیں بزرگوں نے سمجھایا ہے,